fx है x square plus 1 upon x square minus 1 and gx is 10x and you have to discuss the continuity of f of gx. Okay, the continuity of f of gx. So to discuss the continuity of f of gx, first find where you should check the continuity. At which point I should check the continuity. So for f of gx, first check the point at the points where gx is discontinuous. Okay, so gx is what? Gx is 10x and 10x is discontinuous as odd multiple of pi by 2 because at odd multiple of pi by 2 10x is not defined and other points except of odd multiple of pi by 2 10x has no problem. Okay, and other points where you should check the continuity, where gx takes the value where fx has the problem. Okay, so fx has the problem at only plus minus 1. fx has the problem only at 1 and minus 1. Okay, so where gx is getting plus minus 1 and 10x is equal to plus minus 1. So means 10x is equal to 1, x is equal to n pi plus pi by 4 and 10x is equal to minus 1, x is equal to n pi minus pi. So finally, I should check the continuity only at odd multiple of pi by 2, and where 10x is getting 1 or minus 1 means x is equal to n pi plus minus pi by 4. Only these points I should check the continuity. Okay. Okay. Now at these points what's happening? At these points this function is not defined. This function is not defined means f of gx is not defined at odd multiple of pi by 2. If function is not defined at a particular point, function will be discontinuous at that point. So at odd multiple of pi by 2, because gx is undefined, that's why f of gx is undefined, that's why f of gx is discontinuous. Okay, and n pi x is equal to n pi plus minus pi by 4, this function is undefined. No, f of gx is undefined because at x is equal to n pi plus pi by 4, this function gx is getting plus minus 1 and f of plus minus 1 is undefined. So that's why n pi plus minus pi by 4, f of gx will also be undefined. That's why at this point also f of gx is discontinuous. Okay. fx is under root of 1 minus e की power minus x square. Find the check the differentiability at x is equal to 0. तो ये फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है कि नहीं ये चेक करना है. तो बस फिर वही लिमिट चेक करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx माइनस f of 0 अपॉन x माइनस 0. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा. ओके, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx is e1 minus e की power minus x square under root of minus f of 0 is what? 1 minus e की power 0, मतलब 1 minus 1 0 and this is x minus 0. So finally limit x tends to 0, 1 minus e की power minus x square under root upon x. ये लिमिट आ रहा है. इस लिमिट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं वो चेक करते हैं. x जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये 1 minus 1 ये भी 0 की तरफ अप्रोच किया और ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना. तो यू कैन अप्लाई LH रूल. बट LH रूल से क्या होगा कि डिनोमिनेटर में फिर से आएगा. ये देखो ये तो हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन, बट इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर और फिर से इसका करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस x स्क्वायर इंटू माइनस 2x है ना. तो अगेन फिर से कॉम्प्लिकेटेड हो गया. एल हॉस्पिटल से तो टाइम बहुत लग जाएगा, कॉम्प्लेक्स और हो गया फिर. लेकिन पहली फीलिंग यही आती है कि हम एल हॉस्पिटल लगाएं. ओके,
तो बट अब यहाँ पे मैंने देखा कि वही होता है ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, और ये समथिंग अगर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये लिमिट आएगा वन, स्टैंडर्ड लिमिट होता है। तो चलो फिर इसका ऐसा करो, RHL लिखते हैं। तो लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस, और ये आएगा वन माइनस, मतलब एक्स की जगह पे सीधे सीधे क्या चला गया, जीरो प्लस एच, मतलब एच हो गया, तो वन माइनस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर अपॉन एच, ये आ गया, है ना। हाँ, अब इसको ऐसे करो, इसे अंडर रूट के अंदर ऐसे ले जाओ और इसे एच स्क्वायर लिखो। अब एच स्क्वायर लिखने से क्या हुआ कि अल्टीमेटली नीचे तो अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर लिखा हुआ है, और अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर का मतलब तो मॉड एच होता है, तो मॉड एच का मतलब तो एच ही रहेगा, बिकॉज एच तो पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे तुम जीरो प्लस एच रखने से तो एच ही आ रहा था ना अल्टीमेटली, तो अभी भी वो एच ही है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर मॉड एच, और मॉड एच को एच ही रखेंगे क्योंकि एच जीरो प्लस है। तो अब देखो, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है, वन माइनस ई की पावर समथिंग माइनस वन है ना, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस माइनस कॉमन लो ई की पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन एच स्क्वायर, तो ई की पावर समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, माइनस से मल्टीप्लाई किया और ये नलीफाई हो गया, और ये लिमिट अंडर रूट के अंदर जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अंडर रूट के अंदर जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो प्लस ई की पावर माइनस एच स्क्वायर माइनस वन अपॉन माइनस एच स्क्वायर, और है ओके, और फाइनली ये मेरा कितना हो गया, वन, तो ये वन आ गया, राइट हैंड लिमिट तो आ गया वन। ओके, अब लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा कि लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस ही रहेगा, और एक्स की जगह पे जाएगा जीरो माइनस एच, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे ये माइनस एच हो जाएगा। ओके, अब ऐसा करो, इस माइनस को तो बाहर निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस, अगेन इसको ऐसे लिख देते हैं, है ना, ये तो फिर से वही लिमिट आ रहा है, ये तो वही सॉल्व होके कितना आया था वन, और ये माइनस है, तो ये कितना आ गया माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन आ रहा है और राइट हैंड लिमिट वन आ रहा है, मीन्स ये लिमिट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन जीरो पर क्या हुआ, नॉन डिफरेंशिएबल हुआ, है ना। बस इस क्वेश्चन में इस लिमिट को सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके।